Adrenergic drugs. First, you have to know, before knowing the adrenergic drugs, you have to know what is adrenergic nervous system. Adrenergic nervous system is a group of organs and nerves in which adrenaline or noradrenaline are released as a neurotransmitter. तो adrenergic nervous system वो group ऑफ ऑर्गन्स है या फिर आप नर्व्स भी बोल सकते हो जिसमें कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन दोनों रिलीज होता है एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर. तो न्यूरो ट्रांसमीटर के नाम से जाना जाता है, दैट इज़ बोथ एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन. एड्रेनर्जिक नर्व रिलीज न्यूरो ट्रांसमीटर्स नॉर एड्रेनलिन डोपामिन एंड प्रोड्यूस देयर इफेक्ट. तो एड्रेनर्जिक नर्व जो है वो कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज़ करते हैं, वो है नॉर एड्रेनलिन, adrenaline, dopamine and their effect. Here is the definition of adrenergic drugs. Drugs that produce similar effects to those produced by sympathetic nervous system, thus they are also called sympathomimetic drugs. It may refer to something which is susceptible to epinephrine or similar to substances such as biological receptor, especially adrenergic receptor. तो जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स है ये वो ड्रग्स है जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जैसे एक्ट करता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स. मिमेटिक्स में जो कि मिमिक करता है दूसरे सिस्टम के अकॉर्डिंग. तो वैसे ही जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जैसे अपने एक्शंस जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो रिलीज़ करते हैं, इसीलिए उसको सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स भी कहा जाता है. और इसको एपिनेफ्रिन के नाम से भी जाना जा सकता है जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ करते हैं. अ ग्रेट नंबर ऑफ ड्रग्स अवेलेबल विच कैन इफेक्ट एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, एग्जाम्पल डोपामिन, नॉर एड्रेनलिन एंड आइसोप्रेनालिन. तो ये ड्रग्स है कुछ जो कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स में इफेक्टिव है, वो है डोपामिन, नॉर एड्रेनलिन और आइसोप्रेनालिन एक्सेट्रा. Here are the adrenergic receptor. Adrenergic receptors are broadly classified into 3 groups. ये जो adrenergic receptors है वो 3 ग्रुप में क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट है अल्फा रिसेप्टर. these have two subclasses of alpha. There are two subclasses of alpha receptor. These are alpha 1 receptor and alpha 2 receptor. Second is beta receptor. Beta receptors are subdivided into again 3 types, that is beta 1 receptor, beta 2 receptor, beta 3 receptor. Third is dopamine receptor. These are further divided into 2 types, that is D1 receptor and D2 receptor. Next, here some classification of adrenergic drugs. First is according to the mode of action. तो ये जो adrenergic drugs है उसके कुछ अलग अलग क्लासिफिकेशंस है. जैसे पहले mode of action के according adrenergic drugs divided है. First is directly acting. Under that is adrenaline, noradrenaline, dopamine and isoprenaline. Second is indirectly acting. Under that is amphetamine, methamphetamine. Next, third is by both mechanism, that is ephedrine and metaraminol. Second classification is according to receptor selectivity. First is alpha 1 agonist. Under that is methoxamine, phenylephrine. Second is alpha 2 agonist. Under that is clonidine, alpha methyl noradrenaline. Third is both alpha 1 alpha 2 agonist. Under that is adrenaline and noradrenaline. Fourth, beta 1 agonist. Under that is prenaltrol, dobutamine. Beta 2 agonist, salbutamol, terbutaline. Both alpha beta 1 beta 2 agonist. Adrenaline, isoprotrenol. Both alpha and beta agonists, adrenaline and ephedrine. Next, third classification is according to the chemical nature. First is catecholamines. Under that is adrenaline, noradrenaline, dopamine and isoprenaline. Second is non-catecholamines, ephedrine, amphetamine and metaraminol.
Next, fourth classification is according to the therapeutic effect. Vasoconstrictor, under that is adrenaline, noradrenaline, ephedrine, metaraminol. Second, vasodilator, dopamine, isoprenaline. Third, bronchodilator, salbutamol, terbutaline. Fourth, CNS stimulant, that is amphetamine and methamphetamine. Fifth is cardiac stimulant, under that is adrenaline, isoprenaline, prenalatrol. Sixth is nasal decongestant, ephedrine, oxymetazoline. Seventh is uterine relaxant, under that is nilidrine and salbutamol. These are the classifications. Next we will see the pharmacological action of adrenergic drugs. तो अभी तक जितने स्लाइड्स हमने पहले देखे हैं वो सारे ड्रग्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्लासिफिकेशंस. नाउ वी विल सी what are the actions, pharmacological actions of these adrenergic drugs. फर्स्ट एक्शन है इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड इंक्रीज टिश्यू परफ्यूशन. तो फर्स्ट एक्शन क्या है एड्रेनर्जिक ड्रग का, ये हार्ट रेट इंक्रीज करता है, हार्ट को कंट्रैक्शन में हेल्प करता है. नेक्स्ट टिश्यू परफ्यूशन को भी इंक्रीज करता है. नेक्स्ट अल्फा एगोनिस्ट कॉज वैसोकंस्ट्रिक्शन. जो अल्फा एगोनिस्ट है वो वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करता है. बीटा एगोनिस्ट हेल्प्स इन कॉजेज वैसोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन डायलेशन में हेल्प करेगा. नेक्स्ट बीटा 2 एगोनिस्ट कॉजेज ब्रोंकियल डायलेशन. तो बीटा 2 एगोनिस्ट जो है वो ब्रोंकियल डायलेशन कॉज करता है. नेक्स्ट एक्शन इज इनिबिट नॉर एड्रेनालिन रिलीज. दिस इज कॉल्ड ऑटो इनिबिटरी फीडबैक मैकेनिज्म, नॉर एड्रेनालिन रिलीज. तो ये एड्रेनर्जिक ड्रग्स क्या करते हैं, जो नॉर एड्रेनालिन रिलीज जो अनवांटेडली रिलीज होते हैं उसको वो क्या करता है, इनिबिट करता है. सो दीज आर द एक्शंस ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स. Next, indications of adrenergic drugs. To whom we have to give the adrenergic drugs. First is heart block. तो जब आपको ये पता चलता है कि पर्सन के हार्ट में ब्लॉक है, इफ़ द पर्सन इज हैविंग एनी हार्ट ब्लॉक, सो दैट पर्सन शुड बी गिवन adrenergic drugs. Next, treatment of asthma, hypertension, cardiogenic shock, used for prolongation of local anesthetic action by vasoconstriction. तो ये local anesthesia anesthetic के वे में भी यूज़ हो सकता है. टू कंट्रोल लोकल ब्लीडिंग, तो ये लोकल ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए नेज़ल एड्रेनर्जिक ड्रग्स दे सकते हैं. नेक्स्ट, एज ए नेज़ल डिकंजेस्टेंट. इट ऑल्सो इनिबिशन ऑफ यूट्राइन कंट्रैक्शन. एग्जाम्पल इज निलिड्रिन. जो निलिड्रिन एड्रेनर्जिक ड्रग है वो यूट्राइन कंट्रैक्शन को रिड्यूस करने के लिए फिर इनिबिट करने के लिए दिया जाता है. सो दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स. Next is adrenaline. Epinephrine or adrenaline is a sympathomimetic catecholamine. The chemical name of epinephrine is 3,4-dihydroxyphenyl alpha 2-methyl amino ethanol. तो जो एड्रेनलिन है इसका अदर नेम है एफिनेफ्रिन, जो कि सिंपैथोमिमेटिक कैटेकोलामाइन है. इसका केमिकल नेम है 3,4-dihydroxyphenyl alpha 2-methyl amino ethanol. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. तो एड्रेनल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये, द एक्शन ऑफ एड्रेनलिन इज रिसेप्टर मीडिएटेड. इट प्रोड्यूसेस बोथ एक्साइटरी एंड इनिबिटरी इफेक्ट. तो जो एड्रेनलिन है इसमें दोनों इफेक्ट्स स्टार्ट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज एक्साइटरी और इनिबिटरी दोनों. एक्साइटरी इफेक्ट्स ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा रिसेप्टर एक्सेप्ट द इंटेस्टाइन वेयर इट इज इनिबिटरी. तो एक्साइटरी इफेक्ट्स कब प्रोड्यूस होते हैं, जब अल्फा रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं उस टाइम पे एक्साइटरी इफेक्ट्स रिलीज़ होते हैं. और इनिबिटरी इफेक्ट कब प्रोड्यूस होते हैं, जब बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं. नेक्स्ट, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑन हार्ट. इट इंक्रीजेस फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट रेट, कंडक्टिविटी एंड ऑटोमेटिसिटी. तो अकॉर्डिंग टू सिस्टम ये कैसे वर्क करता है, जो एड्रेनलिन है ये जब आप देते हो तो हार्ट में ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज़ होते हैं, हार्ट रेट भी इंक्रीज़ होगा. नेक्स्ट, कंडक्टिविटी एंड ऑटोमेटिसिटी भी इंक्रीज़ होते हैं. नेक्स्ट, ऑन ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस सिस्टमिक ब्लड प्रेशर, डिक्रीजेस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डिक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंट एंड इंक्रीज CO. तो ब्लड प्रेशर में भी ऐसे ये एड्रेनलिन जो है ये सिस्टमिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, डायस्टोलिक को डिक्रीज़ करता है और पेरिफेरल रेजिस्टेंस को भी डिक्रीज़ करता है. Next, on blood vessel, adrenaline helps in dilation of coronary and muscular blood vessels, contraction of visceral and cutaneous blood vessels. तो ये और blood vessels में ये कैसे adrenaline helpful है, ये dilation coronary और muscles के जो vessels है उसके dilation में help करता है. और respiratory system में ये bronchodilation में help करेगा.
नेक्स्ट रेस्पिरेशन को भी स्टिमुलेट करता है। आई में इट हेल्प्स इन मिड्रासिस एक्सोप्थैल्मस रिड्यूस इंट्राओक्यूलर प्रेशर। तो जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है IOP, तो इसको क्या करता है, वो मेंटेन करता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मेंटेन करेगा। नेक्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर इफेक्टिवली। नेक्स्ट ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस नहीं करता। ऑन मेटाबॉलिज्म, इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल, इंक्रीज लैक्टिक एसिड, प्रोमोट रिलीज ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम एडिपोज टिश्यू। और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में ये क्या करता है, शुगर लेवल जो रहता है उसको इंक्रीज़ करेगा, लैक्टिक एसिड को भी इंक्रीज़ करता है, और फैटी एसिड जो है एडिपोज टिश्यू में उसको भी प्रमोट करके रिलीज़ करवाता है। सो दीज आर दी एक्शंस ऑफ एड्रेनालिन। नेक्स्ट विल सी दी इंडिकेशंस ऑफ एड्रेनालिन। ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस। अगर पर्सन को कोई एलर्जिक रिएक्शंस हो गया, उसके ट्रीटमेंट के लिए एड्रेनालिन दिया जाता है। नेक्स्ट टैकीकार्डिया पर्सन्स को देते हैं, हाइपोटेंशन, कन्वल्शंस, एडिशन विद लोकल एनेस्थेसिया। दीज आर द इंडिकेशंस। नेक्स्ट विल सी दी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एड्रेनालिन। फर्स्ट इज पल्मोनरी एडिमा, metabolic acidosis and hypertension. These are the contraindications of adrenaline. Ischemic heart disease, cardiac arrhythmia, hyperthyroidism. These three are also the contraindicated persons. Means जिसको ischemic heart disease, heart problem है, cardiac arrhythmia या फिर hyperthyroidism है, ऐसे persons को भी adrenaline drugs नहीं देते हैं। Adverse effect, agitation, throbbing, headache, tremor, weakness, dizziness, respiratory insufficiency, cerebral hemorrhage. These are the adverse effects of adrenaline. Next we will see the noradrenaline. It is an important neurotransmitter both in peripheral and central nervous system. The chemical name of norepinephrine or noradrenaline is 3,4-dihydroxyphenyl alpha amino ethanol. It is the precursor of adrenaline. तो ये noradrenaline है जिसका अदर नेम है नॉरएपिनेफ्रिन, जो कि दोनों पेरिफेरली और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों जगह पे ये एक्ट करता है। Mechanism of action. Noradrenaline acts by binding with alpha-1, alpha-2 and beta-1 adrenoreceptors at almost has no activity on beta-2 receptor. तो जो noradrenaline और norepinephrine जो है ये alpha-1, alpha-2 और beta-1 पे ही एक्ट करता है और beta-2 पे ये बिल्कुल एक्ट नहीं करता। नेक्स्ट फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज़ होगा, डायस्टोलिक प्रेशर भी इंक्रीज़ करता है, मीन प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है। मीन प्रेशर मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। नेक्स्ट टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन भी इंक्रीज़ होगा, हार्ट रेट भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ और अनचेंज होगा। सो दीज आर द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ नॉरएड्रेनालिन। नेक्स्ट कार्डियक आउटपुट ऑल्सो अनचेंज्ड और इंक्रीज्ड, कोरोनरी ब्लड फ्लो ऑल्सो इंक्रीज्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कम इफेक्ट रहता है। इंडिकेशन है इसके शॉक, टॉपिकल हीमोस्टेसिस, नीजल डिकंजेस्टेंट एंड एडिशन विद लोकल एनेस्थेसिया। तो ये इंडिकेशन है, शॉक होता है अगर हेमोस्टेसिस है, नीजल डिकंजेस्टेंस या फिर एज ए लोकल एनेस्थेसिया भी ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट्स आर लॉस ऑफ एपेटाइट, एंग्जाइटी, इरेगुलर हार्ट बीट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड हेडेक। तो ये है लॉस ऑफ एपेटाइट, पर्सन को भूख नहीं लगता, एंग्जाइटी होता है, हार्ट बीट भी इरेगुलर हो जाता है, ब्रीथिंग भी शॉर्ट हो जाता है और हेडेक्स। दीज आर द एडवर्स इफेक्ट। नेक्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आर हाइपरथायरॉयडिज्म, प्रेगनेंसी एंड कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। दीज आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म है, प्रेग्नेंट मदर्स है या फिर उनको कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हो गया है, तो ऐसे पर्सन्स को भी नॉरएड्रेनालिन ड्रग्स नहीं देते हैं। नेक्स्ट इज क्लोनिडिन. Clonidine is a alpha-2 adrenoreceptor agonist, lowers blood pressure by decreasing the levels of certain chemicals in your blood. तो ये क्लोनिडिन जो है ये अल्फा-2 एड्रेनोरेसेप्टर एगोनिस्ट है जो कि ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करेगा और जो केमिकल्स अपने बॉडी में रिलीज़ होते हैं वो सारे केमिकल्स को भी डिक्रीज़ करते हैं. दिस अलाउज योर ब्लड वेसल्स टू रिलैक्स एंड योर हार्ट टू बीट मोर स्लोली एंड ईजीली. तो अगर जो पर्सन का हार्ट बीट इंक्रीज़ हो गया, हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो गया है या ब्लड वेसल्स पे स्ट्रेस हो रहे हैं, तो ये क्लोनिडिन जब आप देते हो तो ब्लड वेसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं और हार्ट बीट जो है स्लो हो जाते हैं.
Here is the mechanism of action of clonidine. Clonidine treats high blood pressure by stimulating alpha-2 receptors in the brain, which decreases peripheral vascular resistance, lowering blood pressure. तो ये मेन क्लोनिडीन का एक्शन ये है कि वो जो ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाता है, ब्लड वेसल्स पे स्ट्रेस पड़ते हैं, ये सारे चीज़ को क्या करता है, वो रिलैक्स करता है, ब्लड प्रेशर को भी डिक्रीज करेगा. नेक्स्ट, नॉर्मल मेक्स द हार्ट टू बीट वेरी स्लोली. Next, pharmacological actions of clonidine. Central nervous system suppress sympathetic outflow, thus decrease blood pressure. तो blood pressure को decrease करेगा. Peripherally suppress noradrenaline release and decreases blood pressure. Next, cardiovascular में decrease heart rate and cardiac output. Blood vessels, reduction of capacitance vessels, reduce in peripheral resistance, decrease blood pressure. Indications है hypertension, treatment of migraine and diagnosis of phacomocytoma. This is the other condition in which you have to use this clonidine as a treatment purpose. Next, adverse effects of clonidine are sedation, dry mouth, drowsiness, rebound hypertension, headache and fatigue. These are the adverse effects of clonidine. Thank you.